اٹک ہمارا بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا ود خیبر پختونخوا. ہم نے پچھلے دنوں ہری پور کیا تو بہت سے دوست اس پہ مصر تھے کہ جی اگلا ڈسٹرکٹ بہر صورت اٹک ہی ہونا چاہیے. اور دوست ہیں جو ہمارے فوکس گروپ میں جی ناٹ دا کمنٹ فرینڈس. کمنٹس تو پھر ہزاروں کی شکل میں ہوتے ہیں نا, سب کو آپ کیٹر نہیں کر سکتے. تو یہ جو فوکس گروپ والے ہیں نا, میں نے پوچھا کہ کیا خاص وجہ کیا ہے. کہتے ہر چیز ہماری اوور لیپ کر رہی ہے, ہماری پرسنالٹیز اوور لیپ کرتی ہیں, ہمارے کھابے اوور لیپ کرتے ہیں نیبرنگ ہونے کی وجہ سے. یعنی وہ کٹوا پہ بعض ڈسٹرکٹس ایسے ہیں کہ آپ کو بہر صورت ایز اے ڈسٹرکٹ ڈسکس کرنا ضروری ہے. اکیلی ہزرو, حسن ابدال یا اٹک یا پنڈی گھیپ یہ ڈسکس کرنا شاید ناکافی رہے, تشنگی رہ جائے, کیونکہ ایک کمپیکٹ شو کرنے کے لیے آپ کو پورا ڈسٹرکٹ دینا پڑے گا. اس لیے آج ہم ڈسٹرکٹ اٹک کر رہے ہیں. یہ اسلام آباد سے 80 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے اور اس شہر کی بنیاد 1904 میں رکھی گئی تھی. جو تاریخی قصبہ ہے اس کا وہ ہے اٹک خرد, اسی کو ڈیولپ کیا گیا. اس کا پرانا نام کیمبل پور تھا جسے تبدیل کیا گیا 1978 میں اور اسے اٹک بنا دیا گیا. اور کالن کیمبل ایک شخص ہے جس کا نام بڑا مشہور ہے اس وجہ سے کہ یہ اس کے نام سے مشہور ہے, فیلڈ مارشل کالن کیمبل. جڑیاں گلاں کردے او تے لکھیاں ہوندیاں بھاجی؟ ہاں جی, ساری ڈیٹیل مل جاندی. میں سمجھا کھرے عقل مند نے اے ریسرچاں ایویں نہیں آندیاں. سر آپ نے دیکھا آواز کتنی زور کی آئی ہے. ہاں سر, ٹریکٹر تے تالو چ وجی جیسے پڑے پہ لگتی ہے نا, تڑنگ. اچھا جی, مغل بادشاہ اکبر نے اپنے سوتیلے بھائی مرزا حکیم کو شکست دینے کے بعد جب واپسی کا قصد کیا فرام کابل تو رستے میں قیام کیا تھا اس مقام پر, اور یہیں اس کی اسٹریٹجک اہمیت سے متاثر ہوتے ہوئے ایک بڑا شاندار قلعہ تعمیر کروایا. واہ, وہ قلعہ آج بھی موجود ہے جسے اٹک فورٹ کہتے ہیں. وہ بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتی تھی, لیکن چونکہ وہ فوج کے زیر انصرام ہے تو ایک طرح کا علاقہ غیر ہے, وہاں پہ جایا نہیں جا سکتا. لیکن سر وہ بھی صحیح حالت میں ہے یا جیسے قلعہ دراوڑ کا حال ہے اسی طرح ہے؟ بھئی اگر فوج کے زیر انصرام ہے ظاہر ہے بہترین ہوگا. ویسے تو ملک بھی فوج دے زیر انصرام نہیں آئے. ہاں جی ہے. مڑے دا بیڑا غرق کیوں آیا پیا ہے؟ اب یہ شکیل صاحب آپ جواب دیں, بڑی باریک بات پوچھ لی ہے بابے نے. ناگی صاحب نے بڑا تھاٹ پرووکنگ کوسچن کیا ہے. ناگی صاحب کوشش کریا کرو باریک گلاں جڑیاں نا وہ نہ کریا کرو. تواڈے اگے پنو ورگے نالائک بھی بیٹھے ہوندے نے تاکہ سمجھ آوے لوکاں نوں. نہیں وہ میرا خیال مینوں دس رہے ہوندے نے اس لیے تاں دا پیا. اچھا جی, انگریزوں نے اسے 1858 میں 1858 میں ایک کینٹونمنٹ کی شکل دے دی جو آج بھی قائم ہے. سر یہ بھی پٹھوار کا علاقہ کہلاتا ہے. ہاں جی پٹھوار, بلکہ سالٹ رینج یہاں سے شروع ہوتی ہے. او جگتاں کر تو وچ کیوں پنگے لین ڈے ہیں؟ آپاں ایتھے بطور بھنڈ بھرتی ہوئے ہیں, نجم سٹھ ہی بنن ڈے ہیں. اچھا انہاں غصہ کر جانا, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ 12 ਕਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ. سر میرا ایک سوال آپ سے. جی میں دیکھ رہا ہوں کتنے دنوں سے آپ وہ نہیں کہہ رہے, وجہ تسبیحاں, وہ لفظ نہیں آ رہا. آ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر. چھری تھلے ساتھ لے. ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭੰਡ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੌਮ ਚੌਂਸਕੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਣਨ ਡਿਆ? یار انہاں دیاں کئی گلاں کناں 'ਚ ਨਾ ਨਾ ਪੈਣ, قسم خدا دی نیند نہیں آندی. سر میں ایک گل کرنی بھائی آپ شو چلنے دیں, شو چلنے دیں. تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تو ان کی شو نوں دھکا لان ڈیا ہے. اتنی بات نہیں ہوتی جتنی بڑھا رہا ہے. اب بات کریں, چلیں. سر یہ کیوں میری نانی اماں بنی جان دیا؟ بھائی وہ سامنے بیٹھے ہیں, وہ پاگل ہیں, وہ بیوقوف ہیں, وہ ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. سر انہوں کہہ دیو میرے نہ اردو نہ بولے, پھر نہ کیا. اردو کیوں نہ بولوں, مجھے آتی ہے, ہمارا خاندانی کام ہے یہ. خاندانی کا دا تو ہی چموٹے نہ اردو بول دے. سر اٹک کی طرف ضلع اٹک کی 6 تحصیلیں ہیں. ایک تو ہوگی اٹک, جنڈ, حسن ابدال, فتح جنگ, ہزرو اور پنڈی گھیپ. ਸਾਰੇ ਫਿਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ? یہ سب کی سب شکار گاہیں ہیں. ہاں تو پھر تو گئے ہوں گے. آپ بھی شکار کے شکین ہیں, میں بھی شکین ہوں. کون سی گن استعمال کرتے ہیں آپ؟ کون سی کرتے ہیں؟ شرلے والی, اور کون سی؟ شرلے والی کرے جاندے سالیا تیرا پگانیاں دا پھٹا ہے. دل تو چاہتا تمہارا بگانا بھی پھوڑ دوں. پکانا. یار اٹک میں بہت شکار ہے. تیتر ہے, غبارہ بسٹرڈ ہے. غبارہ بسٹڈ کیڑا پائے نا یار, ساری زندگی ہی پگانے پاڑنے, غبارہ بسٹڈ اسی زندگی 'ਚ نہیں دیکھے.
बोबारा बस्टर्ड इसका नाम है, इसे उर्फ आम में तिलौर कहते हैं। अच्छा जी, ये बात वजह तस्मिया, अल्लाह खैर सुकून हो गया है। वजह तस्मिया, अटक को अटक क्यों कहते हैं? मकालाते तारीख अटक, इसके मुसन्निफ हैं राजा नूर मोहम्मद निजामी, हम साथ रेफरेंसेस भी दे रहे हैं ना। उनके मुताबिक अटक जो है ये हिंद को जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है रुकावट। वो जैसे हम एक आम समझते हैं अपनी उर्दू में भी। अटक अटक के अटकना। चलना, जी जी जी, जी। अटक अटक कर क्यों बोलते हो? तो इस इलाके में क्या अटकता है? यहाँ पर कहते हैं कि अगर दरिया चढ़ा हो ना तुगयानी में, क्योंकि गए वक्तों में ये दरिया भयानक दरिया होता था, इसके साइज पानी और तुगयानी की वजह से बहिरा कुचक कहते थे। ये छोटा समुंदर था, ये बहुत पानी है। प्रेशर बहुत ज्यादा। तो कई कई माह इंतजार करना पड़ता था लोगों को उबूर करने के लिए, क्योंकि पुलें शुलें तो होती नहीं थी। अकबर को एक दफा 3 महीने इंतजार करना पड़ा कि दरिया उतरेगा तो फिर पार चलेंगे। इसीलिए उसके इंतजार में कला बन गया हो। जी, उसके इंतजार में हो सकता है इसको अटक कह दिया कि यहाँ आकर सब अटकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो पहाड़ी से टकराता है ना, बहुत बड़े पहाड़ से, तो उसकी वजह से अटक कहलाता है। अच्छा जी, एक और मुहक्किक हैं नुसरत बुखारी, अपनी किताब जिला अटक तज़किरा और तारीख में एक और फैक्ट बयान करते हैं इसकी वजह तस्मिया का, कि अटका खान एक सरदार था जिसकी बीवी का दूध पिया था बचपन में अकबर ने। जब हुमायूं अकबर को अमानतन कुछ सालों के लिए काबुल छोड़ने गया था ना, उसकी बीवी ने बड़ा प्यार किया। बहुत छोटा था अकबर, उस वक्त चीरख्वार था। उसके साथ रिस्पेक्ट और उसकी एस्टीम के लिए इस कले का नाम अटक रखा, अटका खान से। बल्कि वो वक्त के साथ साथ अटक बन गया, अटका ही रखा जी था। जी, अटका रखा था, फिर कसरत इस्तेमाल से अटक बन गया। दरियाए काबुल अटक के मकाम पर दरिया सिंध में गिरता है। वाह। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। और तुम्हारे घर के पास से एक बहुत बड़ा दरिया गुजरता है जो नाला है एक्चुअली। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ भाई गुजरांवाला के अंदर से नहीं गुजरता, सियालकोट से आ रहा है। कौन कौन से नाले हैं? बहुत बड़े बड़े नाले। ਨਾਲੇ नहीं जी, नहर है होते। नाला एक और डेक क्या है? हाँ, हाँ, देखो यार बिल्कुल। कैसा अहमक है ये। और मैं उधर गया नहीं कभी। हालांकि तुम चीज उधर की हो। तुम्हारे खोपड़ से तो यही लगता है। अच्छा जी, अहम मकामात। कला अटक, ये बहुत खूबसूरत कला है, देखकर लर्जा भी तारी होता है, हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है। वो क्यों जी? अफसोस, आम बंदा नहीं जा सकता। जी, इतनी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के बावजूद लोग वहां नहीं जा सकते। गुरुद्वारा पंजा साहब, माशाल्लाह, क्या बात। ये हसन अब्दाल में है और रिवायत है कि पत्थर के ऊपर एक कंधा है, उसका अक्स, और वो गुरु नानक देव का हाथ। ये अटक से 35 किलोमीटर के फासले पर है हसन अब्दाल में, और इसकी ज़ियारत करने सिख यात्री दूर दूर से आते हैं, खास तौर पे कनाडा से, इंडिया से। इंडिया तो नजदीक है, कनाडा बहुत दूर है। फिर है जी अटक ब्रिज, ये भी एक दिलचस्प पुल है कि इसकी 2 मंजिलें हैं, एक ट्रेन के लिए है और एक आम ट्रैफिक के लिए। अब इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रेन की हद तक रह गया। इसी तरह का एक बहुत ही हसीन पुल है, बहुत कदीम लेकिन बहुत खूबसूरत है। यह पुल नहीं है खूबसूरत, दरिया वहां पे बहुत खूबसूरत। इससे डाउन स्ट्रीम जाएं, लेट्स से के अबाउट 50 या मे बी 60 किलोमीटर्स, तो वो है कालाबाग। कालाबाग के मकाम पर भी अल्लाह ने इस दरिया को बड़ा हुस्न दिया, और अकेला दरिया नहीं है, इर्द गिर्द पहाड़ है, फिर वहां पर खूबसूरत घना जंगल है, इसलिए तो काला बाग कहते हैं। कि जो डार्क ग्रीन कलर है ना, गुरूब के करीब करीब का नीलगूं पानी, और उस पर मुस्तजाद बल खाती नदी। ऐसा बल खा रही है वो, ऐसा हसीन बल खा रही है। सर मैं एक गल पूछनी सी जी, मेरी शक्ल कछवे ना मिलदी? नहीं, शक्ल तो नहीं कह सकते, सर अलबत्ता। जिद्दन दा आया तुसी पानी दियां गल्लां सुनाई जान दे। अगर आप खामोश रहते तो आपका बरम्बार बना रहना था। बराबर। तो जी उसकी उर्दू पकड़ी गई। वहां पे एक बड़ा मशहूर नेशनल पार्क है, काला चिट्टा नेशनल पार्क। सन 2008 में इस पार्क का कयाम अमल में आया, और काला चिट्टा दरअसल पहाड़ी सिलसिला है। तो ये भी अगेन अफसोसनाक बात यह है कि इस कदर खूबसूरत टेरेन है, ये इतनी हसीन पहाड़ियां हैं, और ट्रेन का रास्ता, पखडंडियां, छोटी नदियां, नाले, लेकिन ये भी सेंसिटिव एरिया करार दिया गया है ड्यू टू यूरेनियम।
ड्यू टू यूरेनियम, ड्यू टू इंस्टॉलेशंस, ड्यू टू आर्सेनल और एनीथिंग। ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ। तो काला चिट्टा वहां पर आप जा नहीं सकते अनलेस यू हैव एन एनओसी। इसी पार्क में इंडियन चीता, चिनकारा और भूरा तीतर, हबारा बस्टर्ड ये मौजूद होते हैं। अच्छा जी, मशाहीर वाह जी वाह। सर सिकंदर हयात, ये मुतहिदा पंजाब के वजीर आला और कायम मकाम गवर्नर थे, बड़ी उम्दा शख्सियत। और इनसे 4 हाथ आगे इनके साहबजादे थे, सरदार शौकत हयात खान, द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल किताब के मुसन्निफ और बहुत ही अहम कैरेक्टर तहरीक पाकिस्तान का। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यूथ विंग के सरबराह थे। और इनको शौकत पंजाब भी कहा जाता था। उर्दू में इनकी किताब का टाइटल है गुमगश्ता। गुमगश्ता कौम। सिकंदर हयात की तो 42 में डेथ हुई थी। फिर शौकत हयात की हमशीरा और सिकंदर हयात की साहबजादी ताहिरा मजहर अली, बहुत दबंग खातून थी। बड़ी दबंग खातून, लाजवाब खातून, बेहतरीन जो खवातीन अटक ने पैदा की हैं उनकी शायद सरखेल थी। और तारिक अली की वालदा, स्ट्रीट फाइटिंग ईयर्स वाला तारिक अली। पाकिस्तान सरवाइव 1983 की किताब, उसकी बात हो रही है। ये वाह कैंट से इनका ताल्लुक था जो पहले अटक का हिस्सा, बाद में रावलपिंडी का हिस्सा बन गया। फिर एक बड़ी अहम शख्सियत मलिक अता मोहम्मद खान, ये राइडर थे बड़े मशहूर, हॉर्स ब्रीडर थे, टेंट पैगर थे, बड़े महफिली और मजलिसी आदमी। इनकी डेरेदारी बड़ी मशहूर थी, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। और जिन लोगों से ना मिलने का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा उनमें एक मौसूफ भी है, सरदार सलीम हैदर। सरदार सलीम हैदर को जानते हैं भाई? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਦੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਤੋਂ हैदर है। ये तुम्हारा गवर्नर है पंजाब का, बेवकूफ। भाइयों दाढ़ी वाले खत्म हो गए गवर्नर से जड़े गरीबो रहमान। गरीब और बलीग और रहमान। ये अभी तक उसी गरीबो रहमान को समझ रहा होगा, उससे तब्दील हुए कितनी देर हो। अच्छा जी, अगली शख्सियत मोहम्मद इजहारुल हक। पिछले से पिछले हफ्ते हमने फरंगे आसफिया में इनका शेर पढ़ा था। कॉलम ये नवीस। शायर हैं, कॉलम नवीस हैं, टेलीविजन पर मुख्तलिफ मुबाहिसों में तबसरा भी करते हैं और सिविल सर्वेंट रहे हैं। फिर मेरे वालिद के बड़े दोस्त हैं। वो है कि गुलाम भागते फिरते हैं मशअलें लेकर, गुलाम भागते फिरते हैं मशअलें लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमां जैसे। वाह वाह वाह। कैसा बरमहल शेर। राजा नूर मोहम्मद निजामी, ये माहिर आसार कदीमा हैं। इन्होंने अपने घर पे करेंसी नोटों और नायाब सिक्कों का एक बड़ा खूबसूरत अजायब घर बना रखा। मोहसिन रजा, ये इस्लामाबाद में मुकीम सीनियर सहाफ़ी और कॉलम नवीस हैं। फिर अमरनाथ सहगल, ये इंडिया के बड़े मशहूर मुजस्समा साज हैं और इनका ताल्लुक अटक से है। फिर है सज्जाद अजहर, ये शायर भी हैं, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, मुहक्किक हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख पर बड़ी दिलचस्प किताब रावल राज के नाम से इन्होंने लिख रखी है। खाबे, मखड्डी हलवा, निहायत लजीज सूजी का हलवा। वाह। इसमें और आम हमारे सूजी हलवे में बुनियादी फर्क ये है कि इसके नीचे जो शीरा होता है ना, उसकी कैरामेल बनी होती है, जो पतनी बन जाती, वाह। और ऊपर साइडों पे रिच विद नट्स, खास तौर पे पिस्ताशियो एंड कैशू नट्स। फिर एक आइसक्रीम है मसूदी की, और पुरानी रिवायती बड़ी शानदार पुरानी आइसक्रीम, जैसे ओकाड़ा में गए वक्तों में मिला करती थी, अब तो मुझे नहीं पता। डिसेंट आइसक्रीम वीनस चौक में, जी। वो पहलवान नहीं सी, हाँ जी हाँ जी। यूसुफ बलवान बॉडी जी बिल्डर। यूसुफ पहलवान, उसकी अपनी वो खुद बनाया करता था। अब तो नहीं है, वो नहीं जी, फौत हो गया होगा। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਾੜੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ, 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। फिर लाहौर में चमन आइसक्रीम जिस तरह, ये भी रिवायती आइसक्रीम। चना चाट है, आजाद की चाट, वाह वाह। वो भी मजे की है। चपली कबाब, हाँ जी। चपली कबाब। मैं इन्हें चपनी कबाब कहता हूँ, ये चपली कबाब मशहूर है, चपनी कबाब। और मालाकंड होटल के। फिर हलवा पूरी, निहारी, सिरी पाए, खद वगैरह का नाश्ता करना हो आपने तो अटक में सरे फहरिस्त है ताज महल होटल। शाहपुर डैम की मछली, वाह वाह वाह। निहायत लजीज। ये रावलपिंडी फतेहजंग रोड पे काफी रेस्टोरेंट्स हैं जो बेचते ही यही मछली हैं। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? यार यहाँ की मछली जो है ना, ज्यादातर समुद्री मुझे पसंद नहीं है।
मैं खाता हूँ सामन फिश, जो बाहर से आती है, दरियाई लाल रंग की, रेड सामन। अच्छा, आपका और मेरा माइंड बिल्कुल एक जैसा है। कुछ पेड़ा ना खा ली। आखिरी डिश है अब रह गई, ये हमने गुज़श्ता हफ्ते भी किया था, भला कौन सा? की पाए ना कटवा गोश्त। ये घड़े में बनता है, घड़ा कुन्ना टाइप घड़ा होता है, उसमें बनता है बीफ का, बहुत ही लाजवाब। और यहाँ पर हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं चौधरी शमशाद, वो शो देख रहे थे मेरा, क्योंकि चौधरी शमशाद को पैसे कमाने और बेहतरीन खाबे पकाने और दोस्तों को खिलाने के अलावा कोई काम ही कोई नहीं। उनका फोन आया कि पाजी कटवा गोश्त खाना जे, जिस दिन खाना होवे एक दिन के मार्जिन पे बता दे। भाई कटवा गोश्त मुझे भी बहुत पसंद है। इस बात का कटवे को पता है? कटवे को पता होना जरूरी नहीं, मुझे तो पता है ना मैंने क्या खाना है, तो कटवा मैंने खाना है, मुझे पसंद है। पहले तो मंगवा नहीं खांदे ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ।